السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کی چندرشیکھر راؤ کی حالت مستحکم، اسپتال میں معائنوں کے بعد گھر واپس۔ پرائیویٹ ٹیچرز کے لیے فی کس 25 کلو چاول کی فراہمی، وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کے ہاتھوں افتتاح۔ تلنگانہ میں آکسیجن اور بستروں کی کوئی کمی نہیں ہے، تلنگانہ کے وزیر صحت ایٹالہ راجندر۔ ڈگری سال اول طلبہ کو پروموٹ کرنے عثمانیہ یونیورسٹی کا فیصلہ۔ جھوٹی رپورٹنگ یوٹیوب چینل کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کرنے کی ہدایت، کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار IPS۔ JHMC کے پاس تنخواہوں کے لیے فنڈز نہیں، کارپوریٹرز کو ارکان اسمبلی و پارلیمنٹ کے مساوی مراد کی مساعی۔ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 5567 نئے کیسز درج، 23 افراد کی ہوئی موت۔ جنوبی ریاستوں میں جگن موہن ریڈی کورونا سے محفوظ واحد چیف منسٹر، دیگر ریاستوں کے چیف منسٹرز کورونا کا شکار، انتخابی مہم سے دوری کے نتیجے میں جگن کورونا سے بچ گئے۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لڑکیوں اور خواتین کی پہلی پسند کچی شاپ، میٹرو پلر نمبر B1192، لیفٹ سائڈ بڑی چوڑی، اپوزٹ سلطان بازار پولیس اسٹیشن، حیدرآباد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کی چندرشیکھر راؤ کے پھیپھڑوں میں کوئی انفیکشن نہیں ہے۔ کورونا سے متاثر ہونے والے چیف منسٹر کو معائنوں کے لیے شام حیدرآباد کے سماجی گوڑا میں واقع یشودا اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ ان کے کورونا سے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی تھی، اس کے بعد سے وہ اپنے فارم ہاؤس میں ہی ڈاکٹرز کی نگرانی میں تھے۔ ڈاکٹرز کے مشورے پر چیف منسٹر کو CT اسکین اور دیگر طبی معائنوں کیے گئے، جن میں پھیپھڑوں کی کارکردگی کا بھی ٹیسٹ کیا گیا۔ خون کے بعض ٹیسٹ بھی کیے گئے، جس کی رپورٹ جمعرات کو ملی اور بعد ازاں چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ ایراولی میں واقع اپنے فارم ہاؤس واپس ہو گئے۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے ریاست میں پرائیویٹ ٹیچرز کے لیے فی کس 25 کلو چاول کی فراہمی کا آغاز کیا۔ راجندر نگر اسمبلی حلقے کے اتاپور میں منعقدہ پروگرام میں TRS کے رکن اسمبلی پرکاش گوڑ کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اسکولز کے اساتذہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر سبیتا اندرا ریڈی نے کہا کہ پرائیویٹ اساتذہ کو معاشی مدد اور ان کو چاول کی فراہمی کی اسکیم کی تلنگانہ میں شروعات کی گئی ہے، جس کی مثال ملک کی کسی بھی ریاست میں نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی وجہ سے پرائیویٹ اسکولز کے اساتذہ اور دیگر غیر تدریسی اسٹاف کو کافی مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ ان کی مشکلات کے پیش نظر وزیر اعلیٰ کی چندرشیکھر راؤ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ ٹیچرز کو درپیش مسائل اور مشکلات کے پیش نظر اس مرحلے میں 1,24,000 اساتذہ کو 25 کلو چاول فراہم کیا جا رہا۔ گزشتہ روز ایک ہی دن میں 1,12,000 پرائیویٹ ٹیچرز کے بینک کھاتوں میں فی کس 2,000 روپے جمع کروائے گئے ہیں۔ کووڈ-19 کے مریضوں کے لیے قائم کیے گئے بستروں کی تفصیلات سے متعلق معلومات تک عوام کی رسائی کو یقینی بنانے کے لیے تلنگانہ کی حکومت نے ویب سائٹ health.telangana.government.in پر تلنگانہ بھر میں سرکاری اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بستروں کی دستیاب سے متعلق اہم معلومات پوسٹ کرنا شروع کیا ہے۔ کووڈ-19 کے ہاسپٹلز میں بستروں کی دستیابی کے موقف کو اپڈیٹ اس ویب سائٹ کے ذریعے کیا جا رہا۔ اس ویب سائٹ کے مطابق جملہ 16,140 مریض جو کووڈ مثبت ہیں سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں میں زیر علاج ہیں اور ریاست بھر میں 27,061 خالی بستر ہیں۔ سرکاری اسپتالوں میں 9,838 بستر خالی ہیں، جبکہ 17,223 بستر پرائیویٹ اسپتالوں میں خالی ہیں۔ بحیثیت مجموعی آکسیجن اور ICU بستروں کے بشمول تلنگانہ بھر میں 43,201 بستر کووڈ مریضوں کے لیے ہے، ان میں سے 13,860 سرکاری اسپتالوں اور 29,341 بستر پرائیویٹ ہاسپٹلز کے لیے ہیں۔
उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने एक अहम फैसला करते हुए डिग्री साल अव्वल के तमाम तलबा को बगैर किसी इम्तिहानात के साल दुवम में प्रमोट करने का फैसला किया है। रियासत में कोरोना के केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा, जिसके पेश नजर उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मुलाका तमाम डिग्री कॉलेजेस के मुख्तलिफ कोर्सेज BSc, BA, BCom में ज़र तालीम तमाम तलबा को प्रमोट करने का फैसला किया है, जबकि डिग्री सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के इम्तिहानात का फैसला हालात को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने कहा है कि तलबा की सेहत को मुतासर होने से महफूज रखने के लिए यह फैसला किया गया है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने झूठी रिपोर्टिंग करने पर एक प्राइवेट YouTube चैनल के सहाफी के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज करने की हिदायत दी। पुलिस के प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इस चैनल ने नाइट कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी पर अवाम पर लाठी के इस्तेमाल के बारे में झूठी इतला दी। इस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि अवाम के जहनों में तशवीश और उलझन पैदा करने पर इस रिपोर्टर को गिरफ्तार किया जाएगा। उसने पुलिस फोर्स में भी अदम इत्मीनान पैदा करने की कोशिश की। वाज़ेह है कि जैसे ही तेलंगाना में कर्फ्यू नाफिज किया गया, उसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स बशमुल फेसबुक वगैरह पर फैला दिया गया, जिसमें पुलिस को शहरियों पर लाठियां बरसाते हुए देखा जा सकता है। मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद के पास तनख्वाहों की अदायगी के लिए फंड्स नहीं है, जिसके सबब बल्दी अमला खिदमात अंजाम देने के लिए तैयार नहीं है और GHMC की जानिब से कॉरपोरेटर्स को अरकान असम्बली और अरकान पार्लिमान के मसावी मुराद की फराहमी के सिलसिले में इक़दामात किए जा रहे। बताया जाता है कि GHMC ने फैसला किया है कि तमाम 150 कॉरपोरेटर्स और 5 नामजद को ऑप्शन अरकान का इंश्योरेंस करवाया जाए और उनके साथ उनकी बीवी और 2 बच्चों के अलावा दीगर 2 की जिम्मेदारी कॉरपोरेटर्स पर आयद है, उनका इंश्योरेंस करवाया जाएगा। जराए से मौसूला इतलात के मुताबिक सालाना 1 करोड़ 5 लाख से 2 करोड़ तक के अखराजात के जरिए उन तमाम का इंश्योरेंस करवाया जाएगा और इस इंश्योरेंस की सूरत में अगर कॉरपोरेटर या जिन लोगों का इंश्योरेंस करवाया गया है उनमें से किसी की मौत वाक़ई होती है तो उनके अफराद खानदान को 5 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से अदा किए जाएंगे। GHMC में मुंतखब होने वाले बाज कॉरपोरेटर्स का कहना है कि GHMC की जानिब से इंश्योरेंस का फैसला दुरुस्त है और इस पर अमलावारी की जानी चाहिए, जबकि कई कॉरपोरेटर्स का कहना है कि बल्दी मुलाजमीन की तनख्वाहों की इजराई एक संगीन मसला है बनती जा रही है और इस मसले से निमटने के लिए खातिर ख्वाह फंड्स दरकार हैं, जो कि बल्दिया के पास मौजूद नहीं। रियासत तेलंगाना में कोरोना केसों और हलाकतों में तशवीशनाक इजाफा हो रहा। पिछले कुछ दिनों में रोजाना केसों की तादाद 5000 को अबूर कर चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 5567 अफराद मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 23 अफराद हलाक हो गए हैं। GHMC के हुदूद में सबसे ज्यादा यानी कि 989 और रंगारेड्डी में 431 केसेस दर्ज हुए हैं। इसके अलावा मलकाजगिरी में 421 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रियासत में मुस्बित केसों की तादाद 3,73,468 हो गई है और हलाकतों की तादाद 1,899 हो गई है। 3,21,788 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो गए हैं। मजीद 49,781 अफराद अस्पतालों में ज़र इलाज हैं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन-10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन-10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। Contact
98481 187780, 63037 10882. ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना में कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से अचानक नाइट कर्फ्यू के निफाज के फैसले ने तिजारती इदारों और ताजरीन के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। गुज़िश्ता साल रमजानुल मुबारक लॉकडाउन के दरमियान गुजर गया था, जिसके नतीजे में तिजारती सरगर्मियां ठप रहीं। ताजरों और बड़े तिजारती इदारों को रमजान की तिजारत से महरूमी के नतीजे में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता 3 महीने से ताजरों को उम्मीद थी कि इस मरतबा रमजानुल मुबारक तिजारत के एतबार से मुनाफा बख्श साबित होगा और किसी तरह की कोई तहदीदात और पाबंदियां नहीं रहेंगी। गुज़िश्ता महीने तक भी ताजरों ने रमजान की तैयारी कर ली थी। कोरोना केसेस में कमी को देखते हुए ताजरों ने नया स्टॉक मंगवा लिया था। ताजरों को उम्मीद थी कि रमजानुल मुबारक में गुज़िश्ता साल के नुकसानात की तलाफी हो जाएगी, लेकिन कोरोना केसेस में गैर मामूली इजाफे के पेश नजर हुकूमत ने अचानक नाइट कर्फ्यू नाफिज कर दिया। केसीआर हुकूमत कर्फ्यू के हक में नहीं थी, लेकिन हाई कोर्ट की हिदायत के बाद हुकूमत को मजबूरन नाइट कर्फ्यू का फैसला करना पड़ा। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर एम महेश भागवत ने राकुंटा चेक पोस्ट बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद का दौरा किया और वहां पुलिस अमले की जानिब से जारी कारकर्दगी का मुआयना लिया। इस दौरान उन्होंने अवाम से भी गुजारिश की कि वो रात 9 बजे के बाद बिला वजह घर से बाहर ना निकलें। इसके अलावा इस दौरान गाड़ियों की भी तलाशी ली गई और बिना हेलमेट और बगैर मास्क के फिरने वाले गाड़ियों पर चालानात भी आयद किए गए और पुलिस अमले को हिदायत दी कि 8 बजे ही दुकानात और होटलों को इलाके में बंद करवा दें, क्योंकि रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू नाफिज होगा। हमारा तेलंगाना के सरकार ने 20 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू डिक्लेयर किया है और 30 अप्रैल तक चलेगा। रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों ने घर में ही रहना है। शाम को 8 बजे कंपलसरी जो एस्टैब्लिशमेंट है, रेस्टोरेंट, बार, पब, ये सब बंद करना है। कुछ लोगों को खास सहूलियत दी गई है, उसमें मेडिकल शॉप। कमिश्नर्स टास्क फोर्स साउथ जोन टीम हैदराबाद ने 2 सैनिटरी फील्ड असिस्टेंट्स को गिरफ्तार कर लिया, जो डुप्लीकेट थंब इम्प्रेशंस बनाते हुए जारूकशों की गैर मौजूदगी में उनका इस्तेमाल करते हुए उनकी सैलरी हासिल कर रहे थे। पुलिस ने उन गिरफ्तार किए गए अफराद के कब्जे से 5 डुप्लीकेट थंब फिंगरप्रिंट्स, 2 बायोमेट्रिक डिवाइसेस और 2 सेलफोन्स भी बरामद कर लिए हैं। गिरफ्तार किए गए अफराद की शनाख्त मोहम्मद हाजी अहमद उर्फ अली, वल्द मोहम्मद जमील अहमद, 38 साला, ऑक्यूपेशन से सैनिटरी फील्ड असिस्टेंट, साकिन तालाबकट्टा, भवानी नगर, हैदराबाद, और मोहम्मद लईक वल्द मोहम्मद सिद्दीक, 42 साला, सैनिटरी फील्ड असिस्टेंट, साकिन मोगलपुरा, हैदराबाद के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक केस दर्ज कर लिया और मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। तेलंगाना में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 600 मुलाजमीन कोरोना से मुतासर हो गए। ये बात सीजीएम हैदराबाद ओम प्रकाश मिश्रा ने एक बयान में बताई। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान तेलंगाना में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 600 मुलाजमीन कोरोना वायरस से मुतासर हुए और कोरोना से महफूज रहने के लिए इक़दाम किए जा रहे। उन्होंने कहा है कि जिन मुलाजमीन का सार्फिन से बराह रास्त राब्ता होता है, वही सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। इन हालात में 30 अप्रैल तक निस्फ मुलाजमीन ही बैंकों में खिदमत अंजाम देंगे। खुसूसी तौर पर तैयार करदा टी शर्ट की अंदरूनी परतों में छुपाकर लाया गया सोना शहर हैदराबाद की शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम ने जब्त कर लिया। ये जर्द धात पेस्ट की शक्ल में छुपाकर लाए गए थे। ये मुसाफिर दुबई से हैदराबाद फ्लाइट नंबर FZ8779 के जरिए पहुंचा था। इस 386 ग्राम सोने की मालियत 19 लाख रुपए है। इस सोने को जब्त करते हुए मुसाफिर से पूछताछ की जा रही, ताकि ये पता चलाया जा सके कि किसकी एमा पर उस सोने की स्मगलिंग की जा रही थी। वाज़ेह है कि हालिया अरसे के दौरान इस अहम एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग के कई वाकयात पेश आए हैं।
जलपल्ली म्यूनिसिपालिटी के 28वें वार्ड का बाई इलेक्शन होने वाला था। उसमें कांग्रेस कैंडिडेट समद बिन सद्दीक ने अपना नॉमिनेशन विथड्रॉ कर लिया क्योंकि यहां के एमआईएम काउंसलर का इंतकाल हो गया था, जिसको नजर में रखते हुए कांग्रेस कैंडिडेट ने विथड्रॉ कर लिया और उनकी ही फैमिली में से एक को टिकट दिया गया, इसलिए इन्होंने अपना नाम विथड्रॉ कर लिया है। इस मौके पर जलपल्ली चेयरमैन अब्दुल्ला सादी को ऑप्शन मेंबर शरीफ उस्मान बिन हुसैन गालिब, एक्स डिप्टी सरपंच हमद बिन अब्दुल अजीज और हुसैन बिन सिद्दीक के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ये सीट छोड़ दी जाए तो वो लोग जैसे टीआरएस पार्टी की दस्तबरदार हुई, कांग्रेस की जानिब से हमारे समद बिन अब्दाद के वाइफ थे, उन्होंने भी समद बिन सिद्दीक के वाइफ थे, उन्होंने भी दस्तबरदार हो गए। इंसानियत के नाते मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे समद बिन सिद्दीक साहब का और हमारे अलहाज बैरिस्टर साहब की हिदायत पर, और ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने टीआरएस पार्टी से भी अपने कैंडिडेट को दस्तबरदार कराया, विड्रॉ कराया। इंशाल्लाह ये इलेक्शन कल यूनानिमस डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इसमें हमारे मोहम्मद भाई की बहू को यूनानिमसली जीत हासिल होगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कांग्रेस पार्टी का और टीआरएस पार्टी का, तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के काम किया है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिक पेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कोरोना वायरस से बचाव में एहतियाती तदाबीर अहमियत की हामिल है। आम शहरी से लेकर चीफ मिनिस्टर तक हर किसी को एहतियाती तदाबीर के जरिए कोरोना पर काबू पाने का हुनर सीख लेना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर में जुनूबी रियासतों के तकरीबन तमाम चीफ मिनिस्टर्स कोरोना वायरस से मुतासिर हुए, लेकिन आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने एहतियाती तदाबीर को तरजीह दी, जिसके नतीजे में वो दूसरी लहर के बावजूद कोरोना से महफूज हैं। कोरोना की दूसरी लहर में जुनूबी रियासतें ज्यादा मुतासिर हुई हैं और तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के चीफ मिनिस्टर्स कोरोना से मुतासिर हुए। कोरोना की पहली लहर में शुमाली हिंद के रियासतें मुतासिर हुई थी, लेकिन दूसरी लहर में जुनूबी लहर की रियासतों में मुतासिर देखी गई और कर्नाटक में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस दर्ज हुए और जुनूबी रियासतों के मुकाबले कर्नाटक की सूरत हाल अबतर है। बताया जाता है कि मजालिस मुकामी के इंतखाबात और असम्बली और लोकसभा के ज़िमनी चुनाव के नतीजे में केसेस की तादाद में इजाफा हुआ। इंतखाबी मुहिम में शिरकत करने वाले चीफ मिनिस्टर्स कोरोना का शिकार हुए। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के सीआर ने नागार्जुना सागर असेंबली हल्के की चुनावी मुहिम में हिस्सा लिया था, जिसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु पलानीस्वामी, चीफ मिनिस्टर केरला पी विजयन और चीफ मिनिस्टर कर्नाटक बीएस येदियुरप्पा ने इंतखाबी मुहिम से मुत्तलिक जलसों में शिरकत की थी। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी ने तिरुपति लोकसभा हल्के के ज़िमनी चुनाव के इंतखाबी मुहिम से खुद को दूर रखा। वो एक जलसे आम में शिरकत करने वाले थे, लेकिन लम्हे आखिर में कोरोना के पेश नजर मनसूख कर दिया गया। बताया जाता है कि जगन के एहतियात के नतीजे में वो कोरोना का शिकार होने से बच गए।
हुकूमत आंध्र प्रदेश ने कोरोना केसेस में इजाफे को देखते हुए अवाम के लिए बाज़ तहदीदात का ऐलान किया है। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से GORT 161 जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद अवाम की जानिब से गाइडलाइंस पर अमल न करने के वाकयात मंजर आम पर आए हैं। हुकूमत ने फौरी असर के साथ तमाम अजला में सख्ती से कवायद पर अमलावरी का फैसला किया। GO के मुताबिक हर शख्स के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी रहेगा और मास्क के अदम इस्तेमाल की सूरत में 100 रुपए चालान किया जाएगा। पुलिस को इस सिलसिले में चालान के अख्तियार दिए गए हैं। मास्क नाक और मुंह को ढांकते हुए इस्तेमाल करना चाहिए। हुकूमत ने समाजी फासले के तहत अवामी मुकामात, तिजारती इदारों और दफातर में 5 फुट का फासला बरकरार रखने की हिदायत दी है। अवामी मुकामात के अलावा थिएटर्स और दीगर हॉल में जहाँ निशस्तों का इंतजाम है, वहाँ पर मास्क और समाजी दूरी की पाबंदी की जाए। तिजारती इदारों और दफातर में थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन का इंतजाम किया जाए। आंध्र प्रदेश में तमाम स्विमिंग पूल्स को फौरी असर के साथ बंद करने की हिदायत दी गई है। जिले कलेक्टर्स अहकामात पर अमल आवारी के मजाज होंगे। टीम इंडिया के खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के वालिदैन कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। साबिक क्रिकेट कप्तान के वालिद पान सिंह धोनी और वालिदा देवकी देवी को इस वबा से मुतासिर होने के बाद रांची के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया। साबिक कप्तान के वालिदैन रांची ललगड़ुवा में एक फार्म हाउस में रहते हैं। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना के वजीर आला की चंद्रशेखर राव की हालत मुस्तकम, अस्पताल में मुआयनों के बाद घर वापस। प्राइवेट टीचर्स के लिए फीकस 25 किलो चावल की फराहमी, वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के हाथों इफ्तिताह। तेलंगाना में ऑक्सीजन और बिस्तरों की कोई कमी नहीं है, तेलंगाना के वजीर सेहत इटाला राजेंद्र। डिग्री साल अव्वल तलबा को प्रमोट करने उस्मानिया यूनिवर्सिटी का फैसला। झूठी रिपोर्टिंग यूट्यूब चैनल के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की हिदायत, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS। JHMC के पास तनख्वाहों के लिए फंड्स नहीं, कॉरपोरेटर्स को अरकान असम्बली व पार्लियामेंट के मसावी मुराद की मसाई। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 5,567 नए केसेस दर्ज, 23 अफराद की हुई मौत। जुनूबी रियासतों में जगन मोहन रेड्डी कोरोना से महफूज वाहिद चीफ मिनिस्टर, दीगर रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स कोरोना का शिकार, इंतखाबी मुहिम से दूरी के नतीजे में जगन कोरोना से बच गए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज।